Hi everyone, today we are going to discuss Chapter 5 Risk Model. It would be covering value at risk, stress testing, scenario analysis, and country risk. So let's start. Chapter 5 Risk Models. Let's start with this. What are the learning outcomes? What are the things we are going to learn in this chapter? VAR, value at risk, stress testing, scenario analysis, country and sovereign risk models and management. जिसमें सबसे easy है country and sovereign risk models and management. It is scoring also. So we will start with country risk. So country risk types. What are the types of country risk? सबसे first तो country risk क्या है? So the risk which affects the whole country. उस country में जितने भी businesses होते हैं, उस country में जितनी भी companies operate हो रही है, they all will be affected through this country risk. What are the types of country risk? There are two types of country risk: political risk and financial and economic risk. Political risk, for example, if there is any instability in the political environment, it can affect. And financial and economic risk, overall, what can be the financial and economic risk? That the country is not so eligible, not so, currency is not effective, it is not so strong that it will be able to support the MNC. So under political risk also there are different types of risk that are given. First, nationalization or expropriation risk. This is the risk कि हो सकता है कि किसी दिन country बोले कि पूरा हम nationalize कर रहे हैं, so जो भी आपकी company है we will take it over, and उसके लिए they can, हो सकता है वो compensation दे और ना भी दे, so it affect the company. So before investing in the country they need to analyze this through country risk. Then second, exchange control risk. There are controls over exchange की how much ever you are earning from the country, सब पूरा का पूरा बाहर नहीं निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दे आर रिपेट्रिएशन रूल्स कि आपने अगर इतना अर्न किया है तो बस आप इतना ही अपनी कंट्री में लेके जा सकते हो. देन नेक्स्ट, टैक्सेस रूल एंड रेगुलेशन रिस्क. व्हाट इज टैक्सेस रूल एंड रेगुलेशन रिस्क? किसी भी टाइम टैक्सेस न्यू इंट्रोड्यूस हो सकते हैं फॉर द ऐसी कंपनी जो कि उस कंट्री की नहीं है. सो अगर उनका टैक्सेस रूल्स रेगुलेशंस ऐसा है विच इज वेरी, मतलब किसी भी टाइम चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, विच इज वेरी डायनेमिक वॉलेटाइल, तो फिर उसका कंट्री रिस्क ज्यादा होगा. देन इनएफिशिएंट लीगल सिस्टम. हाउ इज द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री? दैट आल्सो अफेक्ट्स द कंट्री रिस्क. Reputation of contracts. What is the past history? How many contracts that government has given to other countries, companies have been fulfilled or repudiated, cancelled? देन फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिस्क जो अपन ने डिस्कस किया कि कैसे अगर जैसे किसी कंट्री से आपने बोरिंग्स लिया है और व्हाट इज द स्टेबिलिटी कैसा है उस कंट्री का, जिस भी कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसका खुद का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसा है, दैट इफेक्ट्स द कंट्री रिस्क. Then again, country risk management process, similar to what we have read in risk management process. क्या करना होता है risk management process में? रिस्क को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, उसके लिए टेक्निक्स डेवलप करो टू असेस जो रिस्क आपने किया है असेस, उसको एड्रेस करने के लिए टेक्निक्स डेवलप करो. उसके बाद उन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करो एंड देन चेक करो कि वो टेक्निक्स उतनी केपेबल थी, उतना इफेक्ट किया या नहीं उसने, सो कंट्रोल इट. Similar is the process with country risk management process also. Identification of risk, analysis of risk, evaluation of risk management techniques, selection of suitable techniques, and then implementing the same, and then checking whether the techniques have been effective, efficient, or not to control it. Then going forward, अपन ने पढ़ा country risk का basics. Then country risk assessment tool. Country risk को assess कैसे करते हैं, उसके tools क्या हैं? Qualitative tools and quantitative tools. Two types of tools. अपन ने पहले भी पढ़ा था risk assessment में भी कि two types of tools are there to assess the risk, quantitative and qualitative. Similarly, for country risk also there are two types of tools, qualitative tools and quantitative tools. Starting with qualitative tools. First is numeral coding. Country का जितना भी risk आया, जितना भी आपने रिस्क कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे आप उसका न्यूमरल कोडिंग करते जाओ हर एक पैरामीटर के बेसिस पे, सो दैट ओवरऑल आप एंड में असेस कर पाओ कि हाउ मच इज द कंट्री रिस्क. फॉर एग्जांपल, जब जिस कंट्री का सबसे कम रिस्क होता है उसको सबसे हाईएस्ट नंबर दिया जाता है. जैसे वन इज फॉर जिसका रिस्क सबसे कम है, एंड हायर नंबर फॉर लेसर रिस्क एंड लेसर नंबर फॉर हायर रिस्क. Similarly, color coding, as we have seen in COVID times also, there are red zones, classified zones which are red. Red मतलब risky and green मतलब non-risky. So according to that, जो भी color combination का आपका जो समझ है उसके according you can code accordingly कि यहाँ पे कितना risk है. Then combination of numeral and color. You can use both combination कि numeral coding और color coding दोनों को use करके उसका combination बना के qualitative tool हो सकता है आपका एक. Then there are some other methods also. फॉर एग्जाम्पल ग्रेड बेस्ड रेटिंग. तो ग्रेड बेस्ड रेटिंग क्या होता है?
जैसे कि क्रेडिट रेटिंग होता है AA, AAA, जो इकरा, केयर, क्रिस्टल अलग अलग देते हैं, that can be used for country risk assessment. And they can be on the basis of event driven also, कि country risk overall इतना नहीं है, but while going to assess ना, आपको event के केस में भी करना पड़ता है कि if there is any specific event that arise, उसकी वजह से country risk पे कितना इफेक्ट हो सकता है. So that is also the case. For example, अभी तो कोविड का केस है ही है कि इवेंट, एक अकेले इवेंट जो पूरा कंट्री रिस्क को असेसमेंट का पूरा चेंज कर दे फिगर. सो और फिर जब क्वालिटेटिव टूल के बेसिस पे आप कंट्री रिस्क असेस करते हो, एंड व्हेन द सेम इज कन्वर्टेड इनटू क्वांटिटी, जब उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन दैट बिकम क्वांटिटेटिव टूल. सो व्हाट आर द क्वांटिटेटिव टूल्स? फर्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. जैसे अपन ने कंट्री रिस्क में पढ़ा कि करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पॉलिटिकल रिस्क के अंदर भी अपन ने देखा, वैसे ही उसको जब हम क्वांटिटी में डिफाइन कर पाएंगे कितना करप्शन है, कितना परसेप्शन कैसा है, स्कोरिंग करो उसी के बेसिस पे कि आपने हाई स्कोर किया इसका मतलब करप्शन कम है, एंड लो स्कोर किया इसका मतलब करप्शन ज्यादा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स. डेमोक्रेसी इंडेक्स आपका कितना डेमोक्रेटिक है एनवायरनमेंट, उसके बेसिस पे. फ्रीडम इन द वर्ल्ड, उसके बेसिस पर क्वांटिटेटिव कंट्री रिस्क असेसमेंट कर सकते हो. देन देयर इज गिनी कोएफिशिएंट. गिनी कोएफिशिएंट क्या मेजर करता है? गिनी कोएफिशिएंट मेजर करता है नंबर ऑफ रिच टू नंबर ऑफ पुअर, एंड इट इज बिटवीन 0 to 1. 0 जब टोटल इक्वलिटी हो आपकी कंट्री में, एंड 1 फॉर टोटल इनइक्वलिटी, और उसके बीच में गिनी कोएफिशिएंट की रेंज होती है. गिनी कोएफिशिएंट पे आज तक बहुत सारे एमसीक्यूज आए हैं, सो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स के बेसिस पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या आता होगा कि एजुकेशन लेवल कैसा है वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, एटसेट्रा. सो ऑल दिस पॉइंट्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन रीड करेंगे ना तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि कहाँ पे है ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कहाँ डिस्कस हुआ है इन कंट्री रिस्क असेसमेंट, सो दैट एट दैट टाइम यू कैन ओपन एंड गिव योर आंसर. सो अपन ने कंट्री रिस्क असेसमेंट डिस्कस कर लिया. देन गोइंग, सो अपना कंट्री रिस्क फिनिश हो गया. यहाँ पे सिर्फ 4 ही पॉइंट्स है जो अपन को कवर करने हैं इन दिस चैप्टर. वॉर, वैल्यू एट रिस्क, stress testing, scenario analysis, and country risk. Country risk we have already covered. Now we are covering value at risk. What do you mean by value at risk? Maximum amount of loss जो हो सकता है any investment is made, वो होता है value at risk. How much amount of your investment is at risk? That is value at risk. Value at risk can be calculated through two things. दो चीजें आपके पास होगी तो value at risk you can calculate. This holding period and confidence level. What is holding period? कितने दिन तक, जितने ज्यादा दिन तक आप किसी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो, द वैल्यू एट रिस्क इंक्रीजेस. अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट को एक दिन में यूटिलाइज कर लेते हो, आप एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका जो रिस्क होगा विल बी मच लेसर देन 10 days के लिए करते हो आप या 1 month के लिए करते हो. तो वार, वैल्यू एट रिस्क राइजेस विद स्क्वायर रूट ऑफ होल्डिंग पीरियड. किस स्पीड से राइज करता है? विद स्क्वायर रूट ऑफ होल्डिंग पीरियड. 10-day वेयर इज बिगर देन 1 day वैल्यू एट रिस्क. डेली वैल्यू एट रिस्क, फॉर एग्जांपल अगर डेली वैल्यू एट रिस्क 10,000 है तो 10-day वैल्यू एट रिस्क कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10, जो कि आपने एसएफएम में भी पढ़ा होगा. तो ये आता है. और अगर आप वही एनुअल कैलकुलेट, आपके पास एनुअल कैलकुलेटेड है और अगर आपको डेली कैलकुलेट करना है तो वही डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन की जगह. और यहाँ पे 250 से क्यों किया है? क्योंकि अज्यूम किया है कि देयर आर 250 वर्किंग डेज इन अ ईयर. तो फर्स्ट थिंग इज होल्डिंग पीरियड एंड सेकंड थिंग इज कॉन्फिडेंस लेवल. कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा वैसे वैसे वैल्यू एट रिस्क विल आल्सो राइज. कि अगर आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हो कि हाउ मच वैल्यू इज एट रिस्क, तो वो अमाउंट जो होगा, एंड 99% पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू एट रिस्क ज्यादा आएगा. बिकॉज आप गारंटी दे रहे हो ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 95% केसेस में आप बता रहे हो कि इतना लॉस होगा, तो 99% केसेस अगर आप इसमें गारंटी दे रहे हो तो उसका वैल्यू एट रिस्क ज्यादा अमाउंट होगा. सो गोइंग फॉरवर्ड, 2-3 एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 12 days वैल्यू एट रिस्क के 20,000 और आपको कैलकुलेट करना है 50 days वैल्यू एट रिस्क, तो कैसे करेंगे? सो सबसे फर्स्ट आपको 1 day का चाहिए होगा. 1 day का कैसे मिलेगा आपको? 20,000 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 12, और फिर आपको अगर 50 का चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 50. सो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं? इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 50 बाय 12, तो उससे आ जाएगा 50 days का वैल्यू एट रिस्क. Similarly, अगर वैल्यू एट रिस्क 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 15,000 है एंड वी नीड टू कैलकुलेट इट एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि अब अपन को क्या चाहिए? वैल्यू एट रिस्क. अगर 1% चांसेस जो है उसकी वजह से वैल्यू एट रिस्क का क्या डिफरेंस आएगा?
So 15,000 multiplied by 2.33, that is for 99%, divided by 1.645, which is for 95%. एंड यहाँ पे टेबल दे रखी है राइट साइड में अबाउट परसेंटाइल अगर कितना है तो उसका जेड स्कोर कितना होगा जो अपन को यूज करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क. देन वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज है. एक है डेल्टा नॉर्मल वार जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं म्यू माइनस 2SD, एंड म्यू को नॉर्मली एज्यूम किया जाता है कि इट विल बी 0, तो उसके बेसिस पे 2SD का कैलकुलेशन करते हैं. सो म्यू माइनस 2SD, एंड अगर जैसे यहाँ पे 1% का अपन ने जो देखा था कि 1% का म्यू को अगर अपन 1 एज्यूम करते हैं एंड SD को 2 एज्यूम करते हैं तो कितना वैल्यू एट रिस्क होता है. तो 1% माइनस 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 2% दैट केम्स टू 2.3%. इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था 200 करोड़, तो वैल्यू एट रिस्क कितना आया 4.6 करोड़. एंड सेकंड मेथड कैन बी फुल रिवैल्यूएशन मेथड. फुल रिवैल्यूएशन मेथड के केस में 3 टाइप के मेथड्स को यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू एट रिस्क. फर्स्ट हिस्टोरिकल मेथड, आपका जो भी वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स व्हिच आर टेकन फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा. Second is bootstrap method. You are using past data, but along with that, you are also trying to predict the future data, and then on the basis of the sampling of the same, you are calculating the value at risk. And third is Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation is only the extension of bootstrap method. Monte Carlo simulation में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एंड कंप्यूटर्स मशीनरी यूज होती है एंड उसके बेसिस पे बड़े बड़े कैलकुलेशंस होने के बाद वो ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो सके उतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट हो. सो Monte Carlo simulation. So these are the two ways of calculating the VAR. Then going forward, coherent risk measures. Coherent risk measures measure करता है how much diversification will affect the risk. तो अगर अपन डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे तो रिस्क को कितना इफेक्ट करेगा. सो एनी मेजर व्हिच फुलफिल्स ऑल ऑफ दिस 4 क्राइटेरियाज दैट इज कंसिडर्ड एज अ कोहेरेंट रिस्क मेजर व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर नोइंग कि कितना डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कितना रिस्क रिड्यूस हो सकता है. सो ये 4 रिस्क मेजर्स क्या है. फर्स्ट, सब एडिटिविटी. एक रिस्क पोर्टफोलियो का जो रिस्क है और 2 पोर्टफोलियो का रिस्क है, अगर 2 पोर्टफोलियो को मिला दिया जाए, अगर अपन दोनों में इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क ऑफ द बोथ द पोर्टफोलियो का जो सम है उससे कम होगा रिस्क. फॉर एग्जांपल ए पोर्टफोलियो ए है उसका रिस्क है 10%, पोर्टफोलियो बी का रिस्क है 5%. सो अगर एक पोर्टफोलियो सी मिलाया जाए विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो ए एंड बी, तो उस पोर्टफोलियो का जो भी रिस्क होगा दैट विल बी लेस देन 15%, दैट इज 10 + 5. दैट इज सब एडिटिविटी रिस्क मेजर का जो एक कंपोनेंट है. Then second क्या है इसका, homogeneity. Size of the portfolio will impact the size of its risk. अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा, अगर पोर्टफोलियो छोटा है तो रिस्क भी कम होगा. देन थर्ड क्या है, मोनोटोनिसिटी. पोर्टफोलियो जिनका ग्रेटर फ्यूचर रिटर्न है, जिनका रिटर्न बहुत ज्यादा है, उसका रिस्क लेस होगा. एंड व्हाट इज रिस्क फ्री कंडीशन. रिस्क फ्री कंडीशन कहता है कि रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो डिपेंडेंट ऑन द एसेट्स विद इन द पोर्टफोलियो ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स. मतलब अगर इसके कोई पोर्टफोलियो पहले से क्रिएटेड है जिसका 15% रिस्क है और उसके अंदर अगर आप कोई ऐसा नया प्रोडक्ट नया इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि रिस्क फ्री है, तो वो आपके रिस्क को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा. 15% रिस्क 15% ही रहेगा बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन रिस्क न्यूट्रल थिंग. तो जो भी रिस्क मेजर इन चारों कंडीशन इन चारों पॉइंट्स को फुलफिल करता है दैट इज अ कोहेरेंट रिस्क मेजर. बट सिंस वैल्यू एट रिस्क जो है वो सब एडिटिविटी को नहीं करता कंप्लाई. क्यों नहीं करता? बिकॉज एज पर वैल्यू एट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू एट रिस्क. अगर वो एक पोर्टफोलियो पे वैल्यू एट रिस्क है और जो 2 पोर्टफोलियो को मिला के जो रिस्क होगा वो वैल्यू एट रिस्क ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग बिकॉज इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज मोर. सो वो सब एडिटिविटी को फुलफिल नहीं करता. दैट्स व्हाई वैल्यू एट रिस्क इज नॉट अ कोहेरेंट रिस्क मेजर. सो व्हाट कैन बी द बेस्ट कोहेरेंट रिस्क मेजर? If you want to calculate it as per value at risk, then the best can be expected shortfall. What is expected shortfall? Expected shortfall मतलब अपने जैसे 95% कॉन्फिडेंस लेवल है. तो फर्स्ट तो आपको सबसे पहले एक नॉर्मल ग्राफ डिजाइन करना है. नॉर्मल ग्राफ क्या, उसका जैसे राइट हैंड साइड पे एक टेल निकल रहा है जिसका 5% जो है वो है जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे. एंड 95% इज द कॉन्फिडेंस लेवल. 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आया कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे वैल्यू एट रिस्क इज 15,000, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है 15,000 तक का. बट जो 5% है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे दैट कैन बी एनी अमाउंट,
वो 15,000 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो जो 5% का टेल एरिया होता है दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। उसमें आप फॉर्मूला लगाते हो, उसमें आप रिस्क मेजर लगाते हो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल टू कैलकुलेट कि उस 5% के केस में भी कितना शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है, कितना हो सकता है। और वो अपन कैलकुलेट क्यों करते हैं? वो अपन सिर्फ इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि अपन को पता चल सके। अब वी नो कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे द लॉस कैन बी मैक्सिमम 15,000, बट अगर वो 5% की सिचुएशन आ गई देन द लॉस देन ऑल्सो एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अपन बैंकरप्ट हो जाए। सो उसके लिए अपन को एक और कोई रिस्क मेजर यूटिलाइज करने की जरूरत होती है। सो दैट इज एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। एन एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल रिस्क मेजर, कोहेरेंट रिस्क मेजर की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है एंड इट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव कोहेरेंट रिस्क मेजर। What are the advantages of expected shortfall? Expected shortfall है sensitive to the entire tail of the distribution. जो बचा हुआ 5% है जिसका कॉन्फिडेंस अपने को नहीं है, उसका पूरा सेंसिटिविटी बताता है। Whereas value at risk will not change even if there are large increases in some of the losses beyond the cutoff percentile. Value at risk बता रहा है 95% के, बचे हुए 5% में कितना भी ज्यादा डिफरेंस आ जाए, कितना भी ज्यादा लॉस आ जाए, बट वैल्यू एट रिस्क चेंज नहीं होगा। इसलिए एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल फॉर दैट एरिया इज बहुत ज्यादा जरूरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज मोर स्टेबल मेजर। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ज्यादा स्टेबल है वैल्यू एट रिस्क से, इंश्योरिंग लेस सेंसिटिविटी टू डेटा एरर्स, लेस डे टू डे मूवमेंट ड्यू टू इररिलेवेंट चेंजेस इन द इनपुट डेटा। इररिलेवेंट चेंज करने पे कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होगा एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में। वैसे भी क्योंकि एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज कैलकुलेटिंग, मतलब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन हो उस काइंड का चीज है, क्योंकि वैल्यू एट रिस्क में आपने 95% का डिराइव कर लिया, बचा हुआ 5% you were not sure and for the same you have applied that expected shortfall. And with value at risk, negative diversification effects can arise. जैसे अपने देखा कि ये सब एडिटिविटी को फुलफिल नहीं करता वैल्यू एट रिस्क, और अगर उसमें एक पोर्टफोलियो की जगह आप दो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करोगे तो वैल्यू एट रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बट द सेम सिचुएशन इज नॉट सेम इन एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में अगर आपने दो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है एंड इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टाइप है कि एक का रिस्क 10% है, एक का रिस्क 5% है, पर दोनों को मिला के हो सकता है 12% ही रिस्क है। सो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल उस एडिटिविटी को फुलफिल करता है। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल नेवर डिस्प्लेज नेगेटिव डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन से एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में बेनिफिट दिखता है। Then what are the limitations of value at risk? Value at risk uninformative of tail losses. जितना भी confidence level का अपने value at risk calculate किया है that is perfect, but the amount which is left behind, कि अगर आपने 95% का किया है, 90% का किया है, 99% का किया है, तो भी एक परसेंटेज अमाउंट तो बचा है ना, 1%, 5%, 10%। उस वो जो टेल है उस टेल के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि उसमें कितना लॉस हो सकता है। सो ये एक लिमिटेशन हुई वैल्यू एट रिस्क की। सेकेंड, कैन क्रिएट परवर्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स। उसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज वो जो बचा हुआ टेल एरिया है उसमें कितना भी लॉस हो सकता है। देन थर्ड, इट डिस्करेजेस डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज जैसे जैसे अपन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, फिर वो चाहे एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें अपन या डाइवर्सिफाई करके करें, वैल्यू एट रिस्क विल कीप इंक्रीजिंग। सो इट विल डिस्करेज डाइवर्सिफिकेशन, इट विल मेक अस फील कि भले अपन कितने में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट वैल्यू एट रिस्क इज इंक्रीजिंग। सो डाइवर्सिफिकेशन करे ही क्यों? देन वैल्यू एट रिस्क इज नॉट सब एडिटिव। वही कि अगर आपने दो पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट किया है देन ऑल्सो इट विल नॉट शो एनी रिडक्शन इन द रिस्क, ओवरऑल रिस्क। So these are some of the limitations of value at risk which you can keep in mind. And जैसे ही पूछा जाए, you can open your book and write down each and every point from the book to the answer sheet. Then ये अपना value at risk पे cover हो गया. So what we have covered? Value at risk and country risk. Country risk में main क्या था? Country risk दो टाइप से कवर किए जा सकते हैं, पॉलिटिकल रिस्क, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क में अपन ने और 5 पॉइंट पढ़े थे। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? कंट्री रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, कि कंट्री रिस्क को अपन कैसे असेस करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई करो, फिर असेस करो, फिर उसके बेसिस पे टेक्निक्स डेवलप करो, फिर टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करो, फिर उसका कंट्रोलिंग करो। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? कंट्री रिस्क असेसमेंट टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में न्यूमरल कोडिंग, उसके बाद कलर कोडिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन, देन सम अदर मेथड्स, फॉर एग्जांपल ग्रेड बेस्ड रेटिंग एक्सेट्रा। फिर अपन ने क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़े। क्वांटिटेटिव टूल्स में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्रीडम इन द वर्ल्ड, ये सारा अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या है? सबसे पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको दो चीजें जरूरी है, उसके लिए आपके पास जो होनी चाहिए होल्डिंग पीरियड एंड कॉन्फिडेंस लेवल। होल्डिंग पीरियड जैसे जैसे जितने ज्यादा टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा है वैसे वैसे आपका वैल्यू एट रिस्क बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बताता है आपका कि आप कितना परसेंट चांस के लिए बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे वैल्यू एट रिस्क को आपने डिफाइन किया है या वैल्यू एट रिस्क का फिगर कैलकुलेट किया है फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल, इसका मतलब आप 95% प्रोबेबिलिटी के लिए बता रहे हो कि इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सो बचा हुआ जो 5% है दैट इज टेल एरिया। वो टेल एरिया के बारे में वैल्यू एट रिस्क कुछ नहीं बोलता। सो होल्डिंग पीरियड और उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे यू कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट को वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करने के भी फिर से दो तरीके होते हैं, डेल्टा वाला नॉर्मल मेथड, नॉर्मल डेल्टा मेथड वाला, एंड सेकंड रिवैल्यूएशन मेथड। नॉर्मल डेल्टा मेथड क्या है, म्यू माइनस 2st। एंड व्हाट इज नॉर्मल रिवैल्यूएशन मेथड? नॉर्मल रिवैल्यूएशन मेथड के केस में आप तीन मेथड यूज कर सकते हो, हिस्टोरिकल मेथड, बूटस्ट्रैप मेथड एंड मोंटे कार्लो सिमुलेशन। सो अपन ने ये सारा पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा कोहेरेंट रिस्क मेजर्स। कोहेरेंट रिस्क मेजर्स में क्या है, चार प्रॉपर्टीज है जो फुलफिल करनी पड़ती है, सब एडिटिविटी, मोनोपोनिसिटी, होमोजेनिटी एंड रिस्क फ्री कंडीशन। सो अपन ने वो सारा कवर किया। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। तो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल क्या है, वो जो 5% का जो टेल एरिया है जो वैल्यू एट रिस्क कवर नहीं करता, बिकॉज 95% कॉन्फिडेंस लेवल उसने कवर किया, 5% उसने जो नहीं कवर किया, उस एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सो दैट ऐसा नहीं हो कि 95% कॉन्फिडेंस पर भरोसा करके आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड देन यू गेट टू नो कि आपके उस 5% ने आपको पूरी तरीके से डुबो दिया। सो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, फिर उसके क्या एडवांटेजेस है और वैल्यू एट रिस्क का क्या लिमिटेशंस है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको पसंद आ रहा है। एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी एक्स्ट्रा चीज चाहिए या कोई भी अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर। थैंक यू।